हेलो एवरीवन। मैं हूं आकांक्षा पी नामा और आप देख रहे हैं अलाइनमेंट टॉक का एक स्पेशल सेगमेंट जहां हम बात करते हैं एचआर एक्सपर्ट्स के साथ में। आज हमारे शो में एक ऐसे ही एचआर एक्सपर्ट्स आए हैं जिनका नाम है मिस्टर रॉबिन ध्यानी, a seasoned HR professional with rich experience in leading organizations like Hero MotoCorp, Aditya Birla, and Musashi Auto Parts, and currently leading Human Resources Department at Bluestone Jewelry and Lifestyle Limited, Jaipur. और आज के एपिसोड में हम ना सिर्फ एज ए एचआर लीडर उनके प्रोस्पेक्टिव को सुनेंगे, बल्कि जयपुर के ज्वेलरी इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज, स्किल डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट और उन सब चैलेंजेस के बारे में डिस्कस भी करेंगे। और जब भी कोई एचआर प्रोफेशनल हमारे शो में आते हैं वो अपने साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाते हैं। तो इस शो को शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जो या तो पहले से ज्वेलरी इंडस्ट्री में है या फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मिस्टर रॉबिन ध्यानी को। कैन यू प्लीज टेक अस थ्रू योर ओवरऑल करियर जर्नी so we can know about you better? So, Akansha, I have started my career with the Japanese MNC, and I joined as management trainee there. And I have been in automobile for almost 10 years. Thereafter, I have been associated with cement industry for 2 years. After that, I have joined a CBG startup that is manufacturing biogas. And currently, right now, I'm working with a jewelry industry. So, from management trainee to head HR, this is my journey in 14 years. And during the journey, I mean, I have always looked for the learning and the development of myself throughout this journey. I have done MBA, then I done diploma in industrial relation and management, and this year I have completed my PGCHRM from XLRI. And Wow, you will sir. glad to know this year I'm also planning for the PhD. Okay. So this is my journey, learning with career growth. So, sir, I think HR people, it's a requirement of their career also, and it fits in their profession also. They keep learning and they keep evolving themselves with the time. The era of changing every day, we need to learn a lot, and it's good to hear from you that you are still planning for PhD and going ahead with your career path. So I always want to be a student throughout my life, because that student willingness to learn is something different. And where the most of the HR people gets wrong is that they uh, when they get a designation, right, their GMHR or maybe something else, they enrich that power which they are getting in the industry, but they stop learning. Yeah. And this is I have seen in lots of my ex bosses and other colleagues. They have stopped learning in their life, and that's where I believe, as a HR professional, the dynamics is changing, the industry is changing, the laws are changing, the generation Z is coming into the as employees in the organization. So you have to keep on changing with the current scenario. So that's what I believe. That's true, sir. What initially inspired you to come into HR profession? So Akansha, my father is also a HR professional, Oh, great. right? So he has been associated with the sugar industry. Oh, So I get a little bit idea about the human resource from there. And when I was pursuing my graduation, then I thought to get into the management. And when I had the options, so my basic intent was towards human resource management. So that's how I choose that. I've seen in and out how my father have worked throughout this journey. So that was one thing I believe could have been in my mind when I chose human resource in my second year. Great, sir. So your like starting inspiration was in the home only. Yes, yes, yes. And you will get to know my relatives are most of the relatives are there in HR. My wife is also, she's MBA in human resource management and diploma in installation. So HR family है, तो वहाँ से Great. so tradition by tradition, everybody is getting into HR. So you have been experienced too much in the HR field. More than 14 years of experience you hold. What
has been the most difficult part you have ever seen in the HR? So difficult part, I mean, difficulty, to be frankly, I don't, I love problems, Mhm. and I don't find anything difficult in my life. Mhm. There is always a solution to every problem, right? Correct. It's the approach Mhm. with which you want to cater it. Especially in human resource, there will be different kind of scenarios that will be presenting in the company or the industry. Mhm. तो आपको तो सोचना ही नहीं है, आपको जैसे चैलेंजेस हैं आपको उसको फेस आपको ही करना है, राइट? द Correct. मैनेजमेंट विल बी सपोर्टिंग यू, बट एज अ फेस एचआर हैज टू टेक इट। अभी मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा। अ फेज व्हेन आई वाज इन अ रिमोट एरिया इन मध्य प्रदेश। तो Mhm. उस टाइम पे आई फेल्ट दैट कि समवेयर आई वाज not equipped enough to do those circumstances, because that was a completely political atmosphere, Oh. right? And उस atmosphere में काम करना थोड़ा challenging था. So that was the only industry I have worked for only 6 months, Mhm. because I have my own principle Mhm. as a HR. What I've taught, my career have started from a Japanese MNC, so compliances are like कि Mhm. 100% compliance industry है, तो मेरे को challenges आते थे वहाँ पे. Mhm. So sometimes it happens you Mhm. make a wrong decision in life, or you doesn't fit into that organization. I would say कि every organization has a different culture, Mhm. and if I didn't get fit in there, so I choose to quit there. Correct. Sir, you told us about your Japanese company experience. May we know something about your experience that time? So I would say I'm very lucky that I have started my career with Japanese, because they believe in concept of quality, right? Mhm. They believe in concept of 5i1H analysis. They Mhm. believe in concept of 5S. So Mhm. I've seen first time, every individual is cleaning their own desk, right? Correct. Which was a good learning. I mean, you Mhm. have to be, in Indian companies especially, Mhm. you get lots of services, but in Mhm. Japanese, when you go there, you have to maintain your own desk. Mhm. Everybody is washing their own machine, उसका Mhm. पूरा ख्याल रखना, सब कुछ उसका टेक केयर करना। Mhm. हर चीज़ आपको पर्टिकुलर प्लेस में मिलेगी, Mhm. इनफैक्ट फाइल भी रहेगी तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहेगी। तो Mhm. वो लर्निंग जो है मेरे को बहुत अच्छी रही वहाँ पे। And I have worked with very good bosses. I mean, I've worked with Mr. G.S. Uppal, and he was the real mentor. I Mhm. mean, initially at the start of my career, he has really, uh, you know, sometimes I used to get annoyed with him, क्योंकि he was very harsh. लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि मेरी टीम मुझसे क्यों annoyed है क्योंकि same thing, when I screw them up, हाँ, तो उनको लगता है कि मेरी expectation बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाँ, आज मुझे वो एहसास होता है कि yes, he was right. हाँ, And हाँ. once I was very annoyed. I told him, sir, I can't take it. So he told me one thing, Robin, अगर मूर्ति बनना है ना, तो आपको फिर छेनी हथौड़े की मार से नहीं घबराना, Correct. right? And हाँ. he has really shaped, I would say, analysis. He has brought, दिमाग चलता ही नहीं था उस लेवल का, जहाँ पे उन्होंने हमारा दिमाग चलना स्टार्ट किया कि कितने तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, कितने तरह के डेटा बन सकते हैं, हम्म. हाउ टू टेक रैशनल डिसीजन मेकिंग। किताबों में हमने पढ़ा था, हम्म. बट रियल टाइम हमने उनको देखा कि हर डिसीजन के पीछे उनका डेटा रहता था, हम्म. डेटा के बिहाफ पे वो डिसीजन लेते थे। And as हम्म. a HR professional, if you're taking decisions on data, हम्म. you will get, I think 99% of your decision will be correct. Correct. Assumptions पे decision can, take you to another mistake. Right. And हम्म. when you are sitting at a very strong position where you have to manage management on one side and union on other side, workers, तो आपको हर डिसीजन रैशनल ही होना चाहिए, डेटा पे होना चाहिए, Correct. और उससे आपको डिसीजन टेकिंग में हेल्प भी मिलती है और आप गलत डिसीजन नहीं लेते हो। Correct. फिर आपसे कोई पूछता है कि आपने डिसीजन किस लिया, तो आपके पास बैकअप है दिखाने के लिए कि आई हैव टेकन द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दिस डेटा। Yes. So these are shield. It Shield. is also a shield. So that all experience, started from Japanese MNC, has really brought me to a different level. Correct. Good to know, sir, about all of your experience. Sir, you have been experienced in many industries, majorly in automobile sector. Now you are working with jewelry industry. So, what inspired you to jump in jewelry from automobile and
in Jaipur? So, inspiration was like, I mean, I would say, if you will go through my profile, Akansha, I have never quit a job just because of the package, right? You see my movement throughout my career is always I have taken for new opportunities. So, I was heading the industrial relation and administration in my last organization. Mhm. And when I got this opportunity that where I was taking care of the complete HR function, so Mhm. it was an opportunity for me. Mhm. The target for head of human resource was 2032 for me Mhm. initially. Mhm. But when I got this opportunity at a very, organization wise, it was very good. The decision was, the financials of the company were very good. So I thought, this opportunity can't be missed. Mhm. Because as a HR, you have different thoughts in mind. Mhm. You understand human resource. आप अपने ideas को implement करना चाहते हो. And Mhm. as a junior, you always have to seek approval from your management and your bosses. Mhm. Sometimes boss agree, sometimes boss feel like क्या risk Yes. क्यों लेना है, Correct. right? तो उसमें heading the department was like one of my dream कि मैं अपने ideas how to engage white collar employees, how to engage blue collar employees, Mhm. कैसे मैं skill development अपने हिसाब से डालूंगा, कैसे मैं skill matrix बनाऊंगा, कैसे मैं अपने PMS को run करूंगा. Mhm. So everything was in my mind when I was working with the other team, and here I'm getting this opportunity. So I didn't look like कि कितना package है क्या है, but the only thing I was looking for learning, Mhm. right? That I told you कि मुझे अभी भी और सीखना है. Mhm. अभी I am still not the master of the human resource, Mhm. or one day maybe, but still there are lots of things because dynamics change in human resource. Mhm. जो एम्प्लॉयज हमने इससे पहले डील किए थे वो अलग थे, आज Mhm. हम आईआईटी के लोगों को डील कर रहे हैं. Mhm. सो द पीपल द एम्प्लॉय सेट इज डिफरेंट. Correct. तो उनके हिसाब से आपको इंडस्ट्री में अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे. नए ट्रेंड्स क्या हैं एचआर में वो आपको देखने पड़ेंगे. अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड एज अ Correct. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. Correct. And do you like the jewelry industry? Jewelry industry is very good in terms of financials. I mean, cash-rich companies. Mhm. But jewelry industry have different challenges. What I feel, I have 9 months. I have been, doing my R&D in the jewelry industry. Mhm. The biggest problem in jewelry industry is the skill manpower. Mhm. You have worked with automobile. How many skills? Unskilled skill, semi-skill, highly skilled, Mhm. operator. इससे Mhm. ज़्यादा skills क्या हो? Maintenance. Mhm. That's it. Mhm. सीमेंट, अदर इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी, वहाँ पे 4-5 स्किल, 6 स्किल, 10 स्किल से ज़्यादा नहीं है. Mhm. But jewelry, you won't believe, jewelry will be having, I think, what I have been to the best of my knowledge, 90 skills are there. Oh, 90 skills. 90 skills. And 90 skill you can, the, if you, it's a polisher. Mhm. Polisher, gold का अलग है, brass का अलग है, और silver का अलग है. Then Right? how you So, get the manpower? so that is the biggest challenge in Uh-huh. jewelry. And that is the most of the HR people are doing it here. They are Mhm. engaged in manpower only. So what is the secret you understood till now, like how to engage people in the jewelry industry? So I would say, first of all, you have to increase your sources. Mhm. I have been associated with many HR people in Jaipur, and Mhm. I have always given them idea. Let's come together, have a agenda. Let's sit together. Mhm. But the problem is कि फायर फाइटिंग से बाहर निकलेंगे तब डेवलपमेंट की सोचेंगे. Correct. And most of the people are in firefighting. Hmm. In ज्वेलरी इंडस्ट्री आई थिंक एचआर इज मोर एंगेज देन एनी अदर इंडस्ट्री, क्योंकि उसको मैन पावर पूरी करने में इतना चैलेंज आ रहा है Mhm. कि वो बाकी डेवलपमेंट चीजें या फिर बाकी इंटरेक्शन विद अदर एचआर पीपल हैविंग अ कॉमन एजेंडा वो सोच ही नहीं पा रहे हैं. वी Right. प्लान मेनी मीटिंग्स लेकिन वो एजेंडा अभी नहीं हुआ. Hmm. कुछ एमओयू साइन हुए जो मुझे पहले पता लगे थे कि Hmm. हम एक दूसरे की कंपनी से नहीं लेंगे, बट देन अल्टीमेटली व्हेन द प्रोडक्शन पुट द प्रेशर, Hmm. राइट, तो फिर आप ये नहीं देखते कि मेरे ऑलवेज यू कैन आस्क दी पीपल. मैं हमेशा उनके एचआर से एक बार कंफर्म करता हूँ, शुड आई टेक इट और लीव इट. Nice. मे बी यू आर नॉट एग्रीइंग विद मी, हाँ. आपका अपना एथिक्स होगा, मेरा अपना एथिक्स है. Hmm. अगर मैं कॉमन एजेंडे में आया हूँ कि मैं अपनी मैन पावर आपकी मैन पावर में हायर रेट पे लूँ, फिर मेरी मैन पावर आप हायर रेट पे लो, तो आप कैसे डिमांड कैटर करोगे? सही फिर बात. तो पॉलिशर, ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, इनकी डिमांड कॉस्ट इसीलिए तो बढ़ी है, इसीलिए बिकॉज in Jaipur the demand is very high but the skilled manpower is very less. Hmm. Even the government, I mean, we have been approaching
I mean, I have been approaching all the HR people कि let's talk to the skill development authority कि हमें यहाँ पे मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर इनका क्या करेंगे? Correct. We are not having the auto industry in Jaipur. Yes, right. ITI कॉलेजेस में आपको ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की उसको कोर्सेज को लाना चाहिए कि एटलीस्ट उनको हम ट्रेन करके वो इतनी नॉलेज हो कि हम उनको एंगेज कर सकें. So I guess Jaipur के अंदर when I was going through the data available on Google, 17.5% जेम एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट का जयपुर से होता है. Obviously, it's a big hub. एंड उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द स्किल लेबर हियर, तो दैट इज अगेन अ शॉर्टेज देयर. It's a very shortage. I mean, मैं खुद एज ए एचआर मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अभी गोल्ड प्राइसेस हाई है, राइट, बिकॉज द गोल्ड प्राइसेस विल कम डाउन तो अगेन मैन पावर का और प्रेशर आने वाला है. बट हाउ विल गेट द मैन पावर? So I think people should take it as a opportunity. Those are coming in this industry. There is a golden opportunity to learn the skills required in the jewelry industry. Obviously. There are two-way solutions. One is if the state government take us, state government is taking the revenue from the industries, right? Heavy revenue. उसके बदले में अगर गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द स्किल सेंटर्स, आप लोकल लेवल पे स्किल सेंटर्स डेवलप कीजिए. उस स्किल सेंटर्स को जो 300, 400, 500, 5000 आई वुड से, लेट्स आस्क द डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कि कितनी डिमांड है, उसका 50% तो आप एंगेज कीजिए. करेक्ट, राइट, देन ओनली द सॉल्यूशन विल कम. अदरवाइज जो हम पैसे भी दे रहे हैं उसके हिसाब से स्किल नहीं है, बट मजबूरी है, क्या करें. अगर हम उस क्वालिटी पे जाएंगे कि हमें बहुत परफेक्ट माइक्रो सेटर चाहिए, तो वो चैलेंजेस पूरे नहीं होंगे. फिर देन वो कहते चलो ठीक है ले लो, उसको थोड़ा बहुत सिखा लेना. दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज रनिंग. बट इफ यू वांट क्वालिटी स्किल मैन पावर, देन स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कम इन प्ले कि भैया यहाँ पे इंडस्ट्री से इतना रेवेन्यू आ रहा है, एक सेंटर आप खोलिए. बिकॉज फॉर अ इंडस्ट्री विच इज, आई मीन, वी आर एंगेज्ड इन सो मेनी थिंग्स. ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको जोन है, जोन में लिमिटेड लैंड है आपकी. आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खोल सकते हैं कि गोल्ड का आपको देखना है, आपको वो भी देखना है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के पास पैसा है तो ये नहीं है कि वो कहीं भी लैंड ले ले. करेक्ट, राइट, दे हैव टू थिंक ऑफ द सिक्योरिटी आल्सो, राइट. तो उस फैक्टर्स को देखते हुए आपको एक लिमिटेड लैंड है, आप वो स्किल सेंटर आप वहाँ खोल नहीं सकते. राइट, स्किल सेंटर डेवलप करने के लिए भी कॉस्ट, करेक्ट, हैवी कॉस्ट है. करेक्ट. और हर इंडस्ट्री ये सोचती है कि यार वाई टू गेट इनटू ऑल दिस, बाहर से मैन पावर दो पैसे फालतू मिलेगी. बट दिस इज अ टाइमिंग सॉल्यूशन. मोर इंडस्ट्री आर कमिंग इन द जयपुर. Still I've got news that two bigger players are coming into the Jaipur industry. So how you are going to, किसकी manpower तोड़ेंगे, कहाँ से तोड़ेंगे? Correct. We have seen like big brands are coming in Jaipur. Right. Jaipur is already the hub of like jewelry people, and in मतलब every गली अगर हम city side में चले जाएं, हमारा चौड़ा रास्ता, हमारा जौहरी बाजार and MI Road, we have a many big good brands of jewelry in the Jaipur itself. And I think this is a great opportunity for the skill developers also. If they are developing people, they can take this opportunity. Yes, and yes. But the problem is who will bail the cat? Yes. If the state government is going to bail the cat. यहाँ पे अपने एसोसिएशन बना के, see, for the initial level, मतलब मुझे पता है कि हर कंपनी के लिए कॉस्ट होगा. Can we collectively make a skill center where we can जनरेट स्किल लाइक माइक्रो सेटिंग, पॉलिश, फाइलिंग, ये जो बेसिक स्किल है यहाँ ये मेरे पावर पूरी हो जाए. तो इसको हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए. आई एम अप्रोचिंग एवरी नाउ एंड देन टू द एचआर पीपल, बट वो कॉमन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है. तो बिकॉज आई मीन मैंने कई बार ग्रुप्स बना के उन पर इंटरेक्शन करने की कोशिश की, बट इंटरेस्ट लेवल इज वेरी लेस. And I myself have to cater the manpower of my company. But still we are working for it, and I have given the proposal to the management. We are very shortly making a skill center of a capacity of near about 50 people trainees. Oh wow, great. So because this high cost of karigars and the artisan will increase the cost of the manufacturing, right, which is not fruitful for anybody. And I think this is a skill, the artisans who are working on it, this is a skill that can be learned over the time.
It's not like some chapters you read हाँ, and it मतलब will come. जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में चैलेंज है कि वो जो कारीगर हैं वो कारीगर को तैयार करने में टाइम लगता है. हाँ, Micro setting is not an easy thing, you know, you can learn overnight. It will yes. take at least 4 to 5 months with dedication. तभी एक fresher can get learn the micro setting. Correct. Polish can be done in 3 months. Filing Hmm. can be done in 3 months. Mhm. But that will take the cost. If you want to make a artisan of gold, Hmm. then who will give you the gold for rubbing their Yes, process? for the experiment. For the experiments. That is the challenge. Yes. So how I have learned this कि पहले लोग ब्रास में तैयार होते हैं, Hmm. फिर वो धीरे करके सिल्वर में जाते हैं, फिर सिल्वर से वो गोल्ड पे आते हैं. गोल्ड पे आते हैं. हम्म. तो इस तरीके से धीरे धीरे वो अपना स्किल डेवलपमेंट खुद ही कर रहे हैं इंडस्ट्री चेंज करके. So, what are the most demanding roles in jewelry industry? Well, demanding roles in terms of the blue collar is, I mean, micro setting, polish, filing. These are the major areas where you know the skill manpower is required. Okay. So most of the I think it goes around like 60 to 70% इन तीन स्किल में कवर हो जाती है. Then comes आपके रोडियम, फाइनल क्यूसी, एनेमलर, then आपके वैक्स सेटिंग. वैक्स सेटिंग इज ऑल्सो क्रूशियल डिपार्टमेंट. आई थिंक 15% तो वैक्स सेटिंग भी होगा. वैक्स सेटिंग भी इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. बिफोर कास्टिंग एक वैक्स सेटिंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो वैक्स सेटिंग के थ्रू ही होता है. वैक्स को फिर आप मोल्ड में डालते हो, फिर वो मेल्ट होता है वैक्स, फिर उसके बाद वो शेप लेता है. And then the process of this filing, polish, and then starts. So ये चार डिपार्टमेंट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है. Okay. So और ये सब इंडस्ट्री वाइज कॉमन है. It doesn't make a difference whether you are in brass, gold और silver. सबके लिए कॉमन रहता है. तो ये चार स्किल अगर केटर हो जाए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री विल बी सॉल्व. Okay. So, what I actually know कि वो डायमंड या उसको बहुत देर तक घिसते रहते हैं. हाँ. और दे कीप वर्किंग ऑन सम लाइक माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल. सो व्हाट आई हैव सीन इन द पीपल लाइक हम लोग सिटी साइड में जब रहते थे, वी हैव सीन दैट. So that's called micro setting. दैट कॉल्ड माइक्रो सेटिंग. Setter. Setters, There are two okay. ways of setter. One is micro setting and one is hand setting. कुछ Okay. लोग बिना माइक्रोस्कोप के भी वो डायमंड सेट कर लेते हैं, राइट. और उसके अलावा कुछ लोग माइक्रोस्कोप से. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर मूविंग टू माइक्रोस्कोप बिकॉज दैट इज मोर एक्यूरेट, मोर क्वालिटी. तो अभी पुराने जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं थे तो वो हैंड सेटिंग और विजुअल सेटिंग वैसे करके करते थे. अब माइक्रोस्कोप आ गए तो लेट्स पीपल आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर क्वालिटी वाइज एंड द एफिशिएंसी वाइज. बिकॉज अगर क्वालिटी नहीं होगी तो रिपेयर में आपका बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारे लॉसेस होते हैं. करेक्ट. राइट. सो माइक्रोस्कोप आपको एक एडवांटेज देता है कि वो आप ज़्यादा एक्यूरेसी से वहाँ पे काम करें. Sir, which is the most niche profile which is very hard to find? So as per my experience, एनेमल एक नई स्किल है जिसमें कुछ कलर रोडियम वगैरह कुछ रहता है, तो उसे एनेमलर बोलते हैं. तो वो बेस्ट ऑफ नॉलेज जितना मैं पता है, तो दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड. आई मीन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर इट. लेकिन एनेमलर में सेरेमिक एनेमल कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो अभी मार्केट में नहीं आई है, तो उसको फाइंड करने में वी फाइंड वेरी चैलेंजेस. आई मीन वो यहाँ इंडस्ट्री में नहीं मिल रही. Okay, and how much their salary goals? I mean, it goes around like 30 to 40,000 easily. I mean, if you have the right skill. सेरेमिक एनेमल जो मैं बेस्ट बता पाऊंगा कि अब गोल्ड में कुछ कलर्स आपने देखे होंगे, ये कलर्स ज्वेलरी हैं. तो कलर्स को सेट करने के लिए उसे सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो करना पड़ता है. कुछ चैलेंजिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो वो स्किल कि किस कलर को कैसे मैच करना है, वो एक स्किल जो है हर एक को नहीं आती. तो पुराने टाइम में जो कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं. बट देन कुछ सेरेमिक एनेमल और विंडो एनेमल नाम की कोई नई चीज है जो स्किल मुझे अपने प्रोडक्शन के लोगों से पता लगी है. वो फाइंड करने में मेरे को हाथ ही जोड़ने पड़ेगी. नहीं, आई कैन टेक इट. आई कैन टेक इट बिकॉज यू नो आई हैव टॉक टू मेनी एचआर पीपल. कहाँ से मिलेगा? सूरत से मिलेगा. इनफैक्ट यू नो वी आर आस्क्ड अवर कॉन्ट्रैक्टर टू गो टू सूरत फॉर फाइंडिंग द पीपल. बट इट्स नॉट इजी टू फाइंड बिकॉज ज्वेलरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम. तो ये स्किल नहीं डेवलप करनी पड़ेगी मार्केट में. जैसे भी होगा तभी हम केटर कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के. So we talk about Surat right now. So there, I think there is a big diamond market in the Surat and jewelry industry वहाँ पे काफी revenue generate कर रही है.
and very famous jeweler everybody knows, like हाँ, Dholakya ji. He has given cars and what not to their employees to keep them motivated. तो जयपुर में भी ऐसा कोई ज्वेलर है व्हाट यू फील, जो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखने के लिए दे गो आउट ऑफ द वे? I don't know. I mean, I would say he's a right businessman. हम्म And what I believe, Akansha, is industry is not made with the cash you have in your pocket, हम्म not with your ideas. हम्म It is the employee of the company which make the brand and make the company successful. करेक्ट Right? If you are spending so much money on your marketing and all, right? But still, your product is not getting, sold or anything. If it's a B2B or B2C, whatever. But imagine if any company gives a car to that brand is itself a hit. You yes don't need to market that brand. हम्म So now Dholakya ji has become a brand in the market. I would say कि उन्होंने जो किया अपने employee के लिए, it's not a big deal for any employer. But then you must have that vision, करेक्ट because maybe I also have the same mindset, because your employee are your brand ambassador. राइट If your employee is saying कि this company is very good, this product is very good, people will going to have faith in them. And employee itself is demotivated, yes and he feel like his expectation is not with the industry, by the company. Obviously he's going to जिससे दुखी है वो कैसे आपके ब्रांड के बारे में अच्छा बोलेगा. करेक्ट आज आप हम यहाँ पे जयपुर में बैठे हैं, आपने कहीं से पिक्चर में सोशल मीडिया में बात सुनी, लेकिन आपको पता है कि ढोलकी जी ने गाली दी. अगर ढोलकी जी का कोई ब्रांड होता B2C, दैट वाज ऑलरेडी हिट, राइट ऑलरेडी हिट, क्योंकि उन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अपने एम्प्लॉय के लिए किया. और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो गाड़ी दे दे. Obviously he must be having that margin to do it, but still if you keep when you are B2C brand, तो आपके employees are your biggest role models, right? They are your brand ambassadors. अगर वो motivated हैं और aligned है अपने organization goal पे, तो company will grow to a great extent. The problem which I felt throughout my career is, people sitting at the top management having an agenda and setting the goals of the organization. But are those goals are aligned to the last people sitting in the company? राइट Right? Do they really know what is the vision of the company for the next 5 years? राइट Are they getting the targets कि आपको ये achieve करना है? And it should be obviously, increments should be linked to the goals. करेक्ट That employee at the last person should know कि मैंने इतना प्रोडक्शन करेंगे, कंपनी का सेल इतना होगा, then company will give you some incentive. And that's why most good HR professionals have brought production incentive and other incentives came into the picture, करेक्ट because that aligns the employee कि इतना प्रोडक्शन करना है, ये हमारे टारगेट्स है, that need to be displayed, every now and then at the shop floor कि हमारे टारगेट्स है, यहाँ पे अचीव हुआ नहीं हुआ, आज हम और मेहनत करेंगे. तो दैट्स व्हाट इज मिसिंग. करेक्ट उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो एमडी है उनका विजन क्या है, क्या है क्या करना चाहते हैं हम नेक्स्ट 5 years में. अगर वहां तक हम सोच पाए तो शायद आई थिंक कंपनी विल ग्रो मोर फास्टर. वेरी ट्रू. एंड इन HRM देयर इज अ सेइंग लाइक, आप टॉप से लेकर बॉटम तक के सभी लोगों का अगर विजनरी एक साथ अलाइन कर देंगे, देन यू विल बी डूइंग द करेक्ट जॉब एज अ HR मैनेजर, और एज अ कंपनी फाउंडर भी. अगर जब तक आप टॉप टू बॉटम अलाइन नहीं करेंगे तब तक देयर इज नो बिजनेस. राइट. तो ये फैक्ट है और ये इम्प्लीमेंटेड है. आई विल गिव यू मेनी केस स्टडीज. गूगल की स्टडी ले लो, हाउ दे हैव अलाइंड एवरी एम्प्लॉय टू द कंपनी गोल, एंड दैट्स व्हाई गूगल इज गूगल. यस राइट. करेक्ट. उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए, मतलब व्हाटएवर, आई मीन अलाइनमेंट कुड बी एनीथिंग, बट एंगेजिंग देम टू एट सर्टेन लेवल की हर एम्प्लॉय गूगल का बोलते एज ए HR और एज अ मैनेजमेंट. आई थिंक अगर एम्प्लॉय आपका ये बोलने लगे ये मेरी कंपनी है, right, this is my company, I will take care of it. Yes. That feeling if you can brought into employee, so then I think no need to worry about anything. Don't worry about quality, don't worry about production. Everybody will work hard towards the organization. Right. And it cannot be only with money. Yes. It cannot be only with the monetary terms. Salary जो है इस organization में अच्छी है, थोड़ी सी ज़्यादा कहीं और मिल जाएगी. लोग कहते हैं कि employee salary के लिए
ही चेंज करता है। हम्म। आई थिंक वो एक इजी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का। राइट। राइट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंसेप्ट। आपको उसके सुख में उसके दुख में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आई डोंट नो, हम मतलब people must be having different approach. I've learned from my bosses uh, कि how to connect with employee. राइट। Maybe उनके घर में कोई फंक्शन हो, आप ना जाओ, but if he's sick, a call from the HR can delight an employee कि at least my HR person had called. Yes, how we treat them in the difficult situations Right, matters. it matters. It will connect the employee for a longer period of time, and Right. it takes pain. HR job is not 9 to 5 job. It is 24 into 7 into 365 job. You have to pick the call. Yes. रात के 12 बजे भी अगर आपके पास फोन आएगा तो आपको उठाना पड़ेगा, किसी एम्प्लॉय को आपकी क्या जरूरत है। सो इफ यू आर दैट मच कनेक्टेड विद ऑल द एम्प्लॉयज, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, क्या चल रहा है, किसकी शादी हुई, किसके बच्चा हुआ, विश फ्रॉम द एचआर, बर्थडे विशेस, ऑल दिस थिंग्स कनेक्ट द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन. The people actually misconcept the HR job like रंगोली बनाना है और wishes देनी है. But how these wishes matters, nobody go deep in the thought and connects correctly. Right, especially in, I think, manufacturing, it is the very critical role for industrialization. When you're working IT company, white collar employees, they have different vision, but and they are self motivated also because they are aligned towards their organization goals and their personal goals also. But in a manufacturing, here comes the difficult part. Every individual is coming from different geographical area with different mindset. हरियाणा के आदमी की एक्सपेक्टेशन अलग है, बंगाली की अलग है, उत्तराखंड के लोगों की अलग है, महाराष्ट्र के लोगों की अलग है. So you are catering, you are making a bouquet of different flowers from different cities of, and there you have to meet everybody's expectation. Right. You have to manage the conflicts between them. Right, you have to see कि भैया अगर बंगाली फेस्टिवल है तो you cannot miss the Bengali festival wishes. Yes, right, you have to. So as a HR, you should know कि छठ पूजा बिहारियों के लिए important है. And if you are just in today's world, we have broadcast, we have HR groups, आपको कनेक्ट, देन वी हैव सॉफ्टवेयर जहाँ पे एक मैसेज अगर आपके पास चला जाएगा. फॉर एग्जांपल, वी हैव इंट्रोड्यूस बर्थडे विशेस कार्ड टू ऑल एम्प्लॉइज इन अवर कंपनी, बट दैट उससे पहले शायद पर्सनल लेवल पे हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल में द कार्ड गेट्स दैट टू एम्प्लॉय साइंड बाय द प्रोडक्शन हेड एंड एचआर हेड. सो दैट मीन्स अ लॉट. These people are very, I mean, उनको वो चीजें नहीं मिली हैं अभी तक. हमारे को कोई विश करे, मतलब we feel good. We feel good. Yes. But they feel delighted. Yes. That as a HR professional or production manager is coming there and giving him a card, and that card is not costing anything, but that delight, he will go to home. Yes. This small gifts at Diwali, Holi, और कोई भी मतलब काइजन्स, कुछ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस स्मॉल थिंग्स, स्मॉल एक्टिविटी व्हिच एचआर डू रियली एंगेज द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. उनका कंपनी सब एक जैसी होती हैं, फाइनेंशियली थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता है, बट वेयर द कल्चर इज गुड, पीपल वांट टू जॉइन दोस कंपनीज. यस, एम्प्लॉय फील सेफ कि यहाँ पे सब ख्याल है, हमारे फेस्टिवल्स का ख्याल है, हमारे प्रॉब्लम्स का ख्याल है, कंपनी फैसिलिटीज दे रही है. एंड देन दीज आर मॉनिटरी टाइम्स, इट इज वेरी लेस. अगर आपने उसको प्रोडक्शन, अगर वो मन से प्रोडक्शन दे दे आपको, तो वो जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल है. बट उसे भी इफेक्टिवली करना एक टास्क है. विद अ डाइवर्स प्रोफाइल, इट्स टास्क अगेन. यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हाउ द पीपल आर कनेक्टेड, पीपल आर हैप्पी. यू हैव टू डू employee service with then formal channels, informal channels. कुछ चीजें फॉर्मल चैनल से निकल के आ जाती हैं, लेकिन इनफॉर्मल चैनल से भी कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं. व्हाट इज रियली हैपनिंग इनसाइड द शॉप फ्लोर, राइट? कि एम्प्लॉय आर, देयर आर सम न्यूसेंस व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि हर तरह के एम्प्लॉय है. आई वाज गोइंग थ्रू विद अ लिंक्डइन स्टोरी. सो देयर वाज अ सर्वे डन कि एचआरस का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे कंज्यूम होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो ज्यादातर काम क्या करते हैं. द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग कि वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा
टाइम सिर्फ कंसोल करने में हाँ एम्प्लॉइज को कंसोल करने में जा रहा है हाँ कि like you stay here or like listen their problems, हम्म, problem with the management, problem with their maybe immediate boss, हम्म, and their personal problems somehow they want to share with their HRs, like so they can connect or they can facilitate some some help. They can like facilitate them some help. So many things like HR people are doing that is वो काउंट भी नहीं होती आई गेस उनके प्रोफाइल में. नहीं काउंट नहीं होती है. You have to pick the call. You cannot skip. HR manager phones had to be 24/7 into 365. राइट. रात दिन आपको कॉल अगर एज ए IR आई वुड से IR HR एक ही बात है. तो आपको कॉल पिक करना पड़ेगा सुबह शाम कभी भी, बिकॉज सामने वाले की क्या इमरजेंसी है आपको नहीं पता. तो ये जॉब बहुत क्रिटिकल है. और जहाँ तक रही कंसोल करने के बाद ना क्या होता है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक HR की जरूरत नहीं होती. राइट. सो प्रोडक्शन पीपल थिंक कि HR डू नथिंग. लेकिन जब केस फंस जाता है तो सीधे उनको फिर HR की याद आती है कि नाउ डू इट. अभी ये यहाँ जाने की लेबर कोर्ट जाने की बात कर रहा है, अब ये यहाँ करने की बात कर रहा है, ये हो गया. सो HR इज लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. एक घर में होते ना कि एक माँ का रोल होता है. राइट. वो माँ को बच्चा भी बोल रहा है, बेटी भी सुना रही है, हस्बैंड भी सुना रहा है, इन लॉज भी सुना रहे हैं, उसके अपने घर वाले भी सुना रहे हैं, तुम ख्याल नहीं रखते. वो सुन रही है और वो अपना काम कर रही है सबको सुनने के बाद, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अपना काम करना बंद कर दिया तो कोई नहीं संभाल पाएगा. That's why you need good IR people, HR people at start of the manufacturing. बाकी जगह चैलेंज नहीं आता है, because if you have right IR person, he will scrutinize कि किस लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना, कैसे डाइवर्सिफाई करना है. अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियल लेवल पे नोटोरियस लोग आ गए, then you cannot control. राइट. सो स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप स्टार्टिंग से एक अच्छा IR का पर्सन रखते हैं तो इट विल बेनिफिट यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मोस्ट ऑफ द क्या हुआ, इनिशियल लेवल पे कोई स्क्रूट नहीं गई, चलो प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, भर लो. उसके बाद क्या होता है, देन द रियल पिक्चर्स कम व्हेन द एम्प्लॉय गेट यूनियनाइज्ड एंड ऑल द अदर थिंग्स. आई एम नॉट अगेंस्ट द यूनियन, बट देन इट शुड बी लाइक अ सेंसिबल पीपल टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. राइट. फिर देन उनके पर्सनल एजेंडे सामने आ जाते हैं. तो ये और बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती हैं कि HR का रोल जब बाद में उनको लगता है कि अब बिल्कुल ही हाई टाइम हो गया तब HR को पिक्चर में लेके आते हैं. राइट. जबकि मेरा मानना है कि HR को इनिशियल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि HR एक माँ का रोल प्ले करता है जिसको सबकी सुननी है, मैनेजमेंट की भी सुननी है. मैनेजमेंट बोलता है निकाल दो, उसे लेबर कोड नजर आते हैं, उसको एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की एक्सपेक्टेशन है कि मैनेजर डांट रहा है. सो ही हैव टू प्ले अ शीट एंकर रोल. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू मोर एम्पैथिक. आपको कल हो सकता है किसी सिचुएशन पे एम्प्लॉय जो है आपको बहुत गुस्सा करे क्योंकि मैनेजमेंट का कोई गलत कॉल हो गया. देन व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर, आपके जो उनके पीरियड से पहले जो आपने रिलेशनशिप बनाए हैं वो आपके उस वक्त काम आते हैं जब सिचुएशन बिगड़ जाती है. आपको ऐसा नहीं है कि केवल उसी टाइम पे डिसीजन लेना है, आपको कंटिन्यूसली उनके साथ टच में रहना पड़ता है, आपको अपने रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ते हैं. फिर किसी दिन जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है तो HR अपने पर्सनल रिलेशन को यूज करके उस सिचुएशन को काम डाउन कर देता है. ये एक मॉब है. मॉब को भड़काने के लिए गलत आदमी ने मॉब को भड़का दिया एंड द पीपल डजंट थिंक, दीज आर कॉमन पीपल, राइट. मेरे दिल के साफ होते हैं, उनको जो भड़का दिया, चलो 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 भीड़ में चलते हैं. व्हाट हैपेंड इन मारुति एंड ऑल, दे मस्ट बी रिग्रेटिंग इट राइट नाउ. जो उनके साथ हुआ अभी वो रिग्रेट करते होंगे, लेकिन उस टाइम पे तो जोश ऐसा होता है कि मतलब वो समझते नहीं है. वहीं पे अगर कोई सेंसिबल चीजें पहले से हो जाती या हम कनेक्ट होते हैं एम्प्लॉय से तो ये सिचुएशन पहले भी रिजॉल्व हो सकती है. राइट. So I think you have shown the very emotional side of HR. So that is very true, and it's genuinely happens in the industry. That's great. We were talking about the jewelry industry of Jaipur.
How important is training and skill development in this industry? Well, I believe in any industry it's very important training and development, but in jewelry industry is very very important Mhm, because the higher demand of the employee will always increase the cost. mhm, Employee expectation is increment for every year, right? This how you are going to give the increment every year, and what will be the production cost? mhm, Production cost will always keep on increasing. mhm, So what you have to do is you have to, when the employee is saying that he want an increment every year, mhm, then he has to mhm. develop his skill to a certain level. Right. A filer can become an assembler. Mhm, Assembler can become a GB box mhm, assembler. GB mhm, box assembler में सेट करना अलग है, फिर mhm, देन जीबी बॉक्स बनाना एक अलग स्किल है. mhm, तो ही हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट, एंड दैट शुड बी द रोल ऑफ द प्रोडक्शन पीपल कि आपको जैसे स्किल मैट्रिक्स में आप देखें कि आपके पास बिगनर होता है, इंटरमीडिएट होता है और mhm. एक्सपर्ट होता है. Right. So beginner people have to move. I Mhm. think 20 to 20% should move from beginners to intermediate, Right. and 20% should move from intermediate to expert. Expert. So this is how you have, अगर आपने उनको skill develop कर ली उन्होंने, Mhm. तो then you know they are eligible for good increments, right? Right. लेकिन आपको नीचे लेवल पे भी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, Mhm, अदरवाइज स्किल उसकी वही रहेगी. mhm, आपको इंक्रीमेंट हर साल देने पड़ेंगे. mhm, अगर आप फोकस नहीं करोगे तो वही पॉलिशर जो पहले 16,000 में स्टार्ट करता है, mhm, वही आपको 30,000 का मिलेगा mhm, डूइंग द सेम जॉब. mhm, सो दैट नीड टू बी अंडरस्टूड, और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि यस वी वांट टू गिव यू, mhm, वी वांट टू गिव यू मोर इंक्रीमेंट्स, mhm, मोर सैलरी हाइक्स. mhm. देन यू हैव टू डेवलप योर स्किल आल्सो. इट्स ऑब्वियस. Right. आई एम सिटिंग एट अ पोजीशन राइट नाउ. Mhm, मैं अगर मैं मेरी पोजीशन पे भी, if I say to the organization that I will keep on doing the same work which you have given to me mhm. and no development from my side, Right. then how I can deserve increment from the company, Right. right? It has Mhm. to be every now and then you have to keep on having some improvement in your skills. Right. कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस साल आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, अगले साल आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, देन ओनली एवरी ईयर you must be expecting the increments, Right. Very right? true. Mhm, So skill development at any level, mhm, managerial level, mhm, हायर लेवल, टॉप mhm, लेवल, एवरी लेवल आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा. mhm, आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी. mhm. आप एक फाइलिंग से स्टार्ट करके असेंबलर बन सकते हैं. असेंबलर की कॉस्ट और फाइलिंग की कॉस्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है. वी आर रेडी हाँ. टू गिव यू, Yes. यू वर्क हार्ड. Mhm, हम ट्रेनिंग सेंटर देंगे. ट्रेनिंग mhm, सेंटर में आप अपना, अदर देन योर वर्किंग आवर्स, आप वहाँ पे mhm, सेंटर पे जाओ, अपना स्किल डेवलप करो, mhm. और उसके बाद आप हायर सैलरी के लिए जाओ. इट्स Right. इट्स इट्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉई Mhm. कि वो अपना स्किल डेवलप करता रहे. Sir, AI is already been launched and there in the market. Now, what do you feel? How much it impacting to the jewelry industry? Well, production level, I don't think so much of Mhm. impact will be there because AI will not make the jewelry. Right. After all, employees and the Mhm. artisan has to make the jewelry. Mhm. But then, in terms of designs, I believe you can get more designs in a Mhm. very shorter period of time. That Mhm. can be done through AI, Right. and especially it is going to be a very challenging for the CAD designers Mhm. because uh, might be they are taking much time in creating a design, and AI can make multiple designs at a Mhm. very short period of time, Mhm. right? With more accuracy, Mhm. with more orientation की production से कैसे link होता है. Right. Because still what I have to best of my knowledge, Mhm. CAD designer has certain expectation towards the design, Mhm. but then he sometimes forgets the challenges which is happening in production, Right. right? एक ही चीज है, उसको अगर डिजाइन को कुछ आप चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत बेटर हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो सकती है. Mhm. और समवेयर मैंने जो फेल्ट किया है कि कैड डिजाइनर प्रोडक्शन में अलाइनमेंट अभी मिसिंग है, Mhm. विच शुड बी देयर एट एवरी लेवल. Right. देयर शुड बी ए क्वार्टरली मीटिंग और समथिंग, क्योंकि आपने डिजाइन बना दिया, आपने फाइनल कर दिया, आपने फोटो कर दिया, Mhm. फोटो में भी होता है, Mhm. बट प्रोडक्शन पीपल हैज अ डिफरेंट माइंडसेट कि Right. उसको स्केल अप करने के लिए क्या इजी सॉल्यूशन हो सकते थे. Mhm. तो वो एक कि वो होना चाहिए. दूसरी बात क्या है कि कैड डिजाइनर्स के लिए जो डिजाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, एआई Mhm. के लिए हो सकता है वो बहुत आसान हो, आसान हो, बहुत करेक्ट. शॉर्ट टाइम में बना दे. Mhm. तो वो इम्पैक्ट जो है आ सकता रहेगा है. एआई के Mhm. लिए. राइट. बट आई थिंक जो आर्टिजन्स है, जो एक्चुअली जो मेन हार्ड वर्क करते हैं, दे आर ऑलवेज सेफ. दे आर ऑलवेज सेफ ऑब्वियसली.
अभी एआई इतना इतना आई मीन यू इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड अदर इंडस्ट्री दे Uh-huh. हैव कम टू रोबोटिक मॉडल, Robotic ears, yeah. राइट। अभी रोबोट से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और हुई हैं ऑटोमोबाइल में। इन माय Uh-huh. पास्ट इंडस्ट्रीज आई हैव सीन Mm-hmm. robots are doing lots of job which a human Mm-hmm. cannot do with 100% accuracy. Mm-hmm. But jewelry is a very delicate item, right? Mm-hmm. It cannot be, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप Mm-hmm. इसमें रोबोट लेके आप उसको वो कर लें। Mm-hmm. ये हैंड जॉब है, Mm-hmm. इसको आपको हाथ से करना पड़ेगा, डेलिकेट आइटम है, Mm-hmm. राइट। गोल्ड है, Mm-hmm. बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। आई डोंट नो, मतलब साइंस में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम में ऐसी क्या कौन सी होगा? चीज हो जाए, बट हाँ। अभी फ्यूचर आई थिंक दिस डेकेड इट्स नॉट पॉसिबल कि हाँ। एआई या कोई रोबोटिज्म इसको थोड़ा आसान बना दे। अभी तो हम्म। हमें एम्प्लॉय पे ही निर्भर होना पड़ेगा। What opportunities you see, like in 5 to 10 years, what new opportunities will be in the jewelry industry? Well, I think jewelry industry will grow like anything in the coming decade. Mm-hmm. The problem, I think, still we have, to my best of my knowledge, I think unorganized sector is still a larger gap. Oh. You have seen all the jewelry industry growing big, Hmm. right? All the people who are getting into the jewelry Mhm. sector are growing big. How? Hmm. Because still अभी हमारे पास unorganized sector बहुत है, Right. right? Hmm. In Uttarakhand itself, I talk about, people are going to their jewelers. I'm not against them, Mm-hmm. राइट। दे आर गोइंग, उनका वो फैमिली ज्वेलर्स हैं, Right. वो उन पे वो बिलीव कर रहे हैं। Right. और हॉल मार्किंग कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है, Mm-hmm. उसमें भी बहुत बड़े स्कैम्स जो हो रहे हैं कि हम्म। नकली हॉल मार्किंग करके दे दिया, Mm-hmm. 24 की जगह 22 दे दिया। सो हम्म। पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रांड्स। Mm-hmm. दे न्यू कि मेकिंग चार्जेस थोड़े हायर होंगे, बट द क्वालिटी विल बी गुड। Mm-hmm. द क्वांटिटी, जिस कैरेट के हम पैसे दे रहे हैं वही कैरेट होगा, Very good. हाँ. right? So Mhm. people will move towards and the designs. I Mhm. mean, you go to a local jeweler, वो designs कैसे हैं, Hmm. right? You're paying a high metal gold, Hmm. right? You're paying for it. Hmm. तो उससे better designs, I believe, you will get from our company or other companies. And the या big brands. brand and the same thing, Mhm. better designs, Hmm. same thing with quality, with Mhm. hallmarking, Mhm. everything. And then we have a buyback. Hmm. All the companies are taking the buyback also because they are giving the same prices. Right. There is no fake into it. Mhm. So people are moving from unorganized sector, और Hmm. अभी मेरे ख्याल से unorganized sector कम से कम 60 to 65% होना चाहिए, Mhm. to my best of my knowledge। Mhm. ये 65% अभी भी इंडिया में बाकी है। Oh. इंडिया जहाँ घर घर में लोग सोना पहनते हैं, Hmm. और जब उनका मूवमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा तो हर इंडस्ट्री जो ज्वेलरी से रिलेटेड है और इंडस्ट्री में काम कर रही है उनको प्रॉफिट होगा। Right. तो आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट आल्सो इज गोइंग टू बी अ बिग, वी आर ऑलरेडी वेरी गुड Yes. इन Yes. एक्सपोर्ट, Yes. हाँ. बट दैट विल कीप ऑन मूविंग। अभी तो गोल्ड प्राइस और वो यूएस सैंक्शंस की वजह से बहुत डाउन है एक्सपोर्ट मार्केट, Mhm. बट द थिंग्स विल नॉट रिमेन द सेम, इट Yes. विल कीप ऑन चेंजिंग। Mhm. और इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया का बहुत नाम है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एक्सपोर्ट एंड एवरीथिंग। Mhm. तो और हमारा लोकल मार्केट में भी जब पीपल मूव करेंगे इन ब्रांड्स की तरफ तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल हैव अ बेनिफिट। Right. सो एज अ फ्रेशर आई वुड से कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। If somebody is planning their career in the jewelry industry, तो उन्हें कहाँ से they should start? Well, first of all, they should start with the qualification. They should attain a qualification, whether they want to get into production or into designing, or into IT solutions. There is scope for everything, right? People are getting digital. People want to buy online. Mhm. तो आईटी लोगों के लिए वहाँ पे सपोर्ट है कि यू कैन मेक समथिंग विच इज़ वेरी इजी फॉर द कंपनीज, कि वो अपने प्रोडक्ट बहुत इजीली बाय कर सकते हैं, वहाँ पे सेल कर सकते हैं आपके ऑनलाइन से, ऐप के थ्रू हो सकता है। देन एक कंपनी को जितना एफर्ट लगता है उसकी पूरी सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर ऐसा आ सकता है जो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई चेन को ईजी कर सके विद 100% एक्यूरेसी। देन पीपल कैन गेट इनटू डिजाइन स्कैड में तो लोग जा ही रहे हैं, तो दिस स्कोप देन यू कैन गेट इनटू प्रोडक्शन आल्सो। और ब्लू कॉलर के लिए अपॉर्चुनिटी है आई थिंक। कोई इंडस्ट्री, जितना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, अ फ्रेशर गेटिंग इनटू द ज्वेलरी इंडस्ट्री, अब वो काम सीखे तो 2 साल में उसकी जो सैलरी है कैन इजीली गेट अप टू 20 to 25,000, right, in jewelry industry, which doesn't happen in any other industry.
इफ यू टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल और अदर स्किल्स, वहाँ पे हम्म, चैलेंज है। हम्म, इनफैक्ट वहाँ पे जो पे स्केल है वो कुछ लोग मिनिमम वेजेस पे हैं, हम्म, कुछ मिनिमम वेजेस से ऊपर हैं, हम्म, बट नो अदर प्लेयर, अदर हम्म, इंडस्ट्री is हम्म, providing such handsome salaries which jewelry industry is providing. But right, obviously you have to work for your skill, हम्म, और वो स्किल 2 साल में इजीली डेवलप हो जाती है। पर क्या right, एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो हम्म, ऑटोमोबाइल और अदर इंडस्ट्री में जाता है, क्या उसकी 25-30 हज़ार हो जाती है 2 साल में? नहीं। नहीं होती है। हाँ, तो लाइक बेसिक जो आईटीआई डिप्लोमा पीपल हाँ, है और जिन्होंने बहुत हाई एंड एजुकेशन नहीं लिया है, हम्म, लाइक ऐसा बहुत मेजोरिटी ऑफ यूथ इज देयर जो हम्म, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या हाई एंड एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। दे आर स्टिल 10 से 15 हज़ार रुपए की जॉब लेना भी एक आईटीआई पर्सन के लिए इट्स डिफिकल्ट, व्हाट वी सी एक्चुअली। राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है अभी इंडस्ट्री में कि आपके पास लोग हैं हम्म, जिनको काम करने की अभिलाषा है, हम्म, दे आर रेडी टू गेट इनटू ज्वेलरी इंडस्ट्री। उसको अगर ये आप फ्यूचर दिखाओगे कि आप 2 साल में 25 हज़ार तक पहुंच सकते हो, 20 हज़ार तक पहुंच सकते हो, हम्म, तो ऑब्वियसली देयर इज नो स्कैसिटी ऑफ मैन पावर इन इंडिया। हम्म, वी आर 1.4 बिलियन, 140 करोड़ लोगों में मैन पावर की शॉर्टेज तो नहीं है। नहीं है, करेक्ट। देन ज्वेलरी में डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम्म, Problem is that nobody want to spend time and money on the skill development. राइट, And ideally, it should be the responsibility of the state government or the central government हम्म, to give some subsidized thing. अपना center खोलिए, jewelry industry can really turn around the things for India in terms of exports or in terms of GST, हम्म, right? In terms of on organized sector, I don't want to हम्म, blame anybody, but obviously, हम्म, right, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जीएसटी कलेक्शंस जो होंगे हम्म, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जीएसटी कलेक्शन होंगे उसमें बहुत डिफरेंट होगा। यस, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, हम्म, दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द कॉम्प्लायंसेस, एंड वो मतलब दे आर ऑथेंटिक कंपनी, राइट, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट द ब्रांड। हम्म, और वहाँ पे जीएसटी कलेक्शन जो आपके होंगे उससे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन वहाँ पे जीएसटी कलेक्शन नहीं होंगे। हम्म, तो आपको जब जीएसटी कलेक्शन चाहिए, हम्म, राइट, यू वांट जीएसटी कलेक्शन फॉर द कस्टमर, हम्म, तो आपको उस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ फैसिलिटेशन तो देना पड़ेगा ना। ट्रू, एंड स्पेशली आप ज़्यादा नहीं कर सकते। आई डोंट वांट कि आप एरिया वाइड करें, बट आईटीआई कॉलेजेस जो हैं उनमें क्यों ज्वेलरी के स्किल डेवलप नहीं हो सकती, स्पेशली इन जयपुर। I have a question with the government also कि why Rajasthan government is taking revenue, so much revenue from the jewelry industry, why not they taking initiative कि कुछ centers ITS के वहाँ पे ट्रेड, आपकी तो अपनी कलम है, आपने बोल दिया कि ये ट्रेड्स के अलावा ये ट्रेड्स भी आईटीआई में आएंगे और वो कम पैसे में आपको अवेलेबल होंगे, तो व्हाई नॉट पीपल विल गो देयर। अभी जो मुझे पता है कि जो स्किल सीखने के भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, कंपनी के पास स्पेस की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, या फिर जो भी वट एवर रीजन, या वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही स्किल सेंटर खोल सकते हैं। बट द गवर्नमेंट हैज एवरीथिंग, दे हैव मनी, दे हैव लैंड, दे हैव स्टिल दे हैव जीएसटी रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यूज, हमारे इनकम टैक्सेस, एवरीथिंग, सो दे शुड टेक द इनिशिएटिव। यहाँ पे होना चाहिए, इट विल हेल्प टू केटर द डिमांड ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री। सूरत लोकेशन है, मुंबई है, जयपुर है, जहाँ पे ज्वेलरी का इतना बड़े हब्स है, वहाँ पे बल्क लेवल पे आप क्यों आईटी इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे? एंड व्हाई नॉट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? झारखंड के लोगों को रोजगार चाहिए, वी डोंट हैव इंडस्ट्रीज। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार चाहिए, वहाँ पे सेंटर्स खोल के व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट? आई मीन ज्वेलरी इंडस्ट्री तो सबको वेलकम करती है, उनको स्किल चाहिए, people are fighting for skilled workers, so why cannot others all over India, state government can take this initiative कि let's do it, let cater। और फिर आप अपने एजेंडे भी आप बताएंगे कि आपने इतने लोगों को एम्प्लॉयड किया, राइट, राइट। तो वो आपके जो एजेंडाज हैं, रोजगार, महंगाई, तो उनको भी अब वो केटर कर रहे हैं आप। तो उनका प्लेसमेंट्स, आप रोजगार मेला लगाइए, इंडस्ट्रीज को बुलाइए, पहले आप डेवलप कीजिए। जय आई थिंक जयपुर इंडस्ट्रीज तो भाग के जाएंगी जहाँ भी आपको अच्छी स्किल मैन पावर मिलेगी, या सूरत इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जाएगी। अगर उनको एक पॉलिशर को जिसको थोड़ा थोड़ा आता है उसको 17,000 18,000 देने पड़ रहे हैं, और एक सर्टेन लेवल का बिगनर आपको 12-14 हज़ार रुपये मिल रहा है, और उसको आप करियर पाथ दे सकते हो। आप बोल सकते हो 12,000 इस साल, 14,000 इस साल, 16,000, 18, 25, 30,
बट इफ समबडी इज गेटिंग इनटू बिगिनर एट द कॉस्ट ऑफ 20 या 25, तो आप उसे कहाँ लेके जाओगे? 50 तक? फिर कॉस्ट क्या होगी आपकी प्रोडक्शन की? सो दैट विल बी, इट इज चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी. एंड what I believe is कि only the state government or some NGOs or all the HR coming together, putting this CSR money and getting a skill set in Jaipur and other cities, this is how the problem will be solved. So my last question to you, like one piece of advice for the HR professionals coming into the HR profession now. Well, it can't be one piece of advice because HR is not a I mean I would say कि HR रंगोली बनाता है, ठीक है, लेकिन HR बहुत कुछ बनाता है. HR एम्प्लॉय का करियर डेवलप करता है, विजन देता है, दे कनेक्ट टू एट टाइम्स हम एम्प्लॉय से इतना कनेक्ट होते हैं कि दे आस्क कि मेरे एम्प्लॉय कि क्या आपको मेरे बच्चे को मुझे क्या एजुकेशन करानी चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, कहाँ से होगा, कैसे कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट करो. तो HR प्ले अ बिगर रोल. Then getting a fresher into HR, what I believe is first of all आपकी integrity level high होना चाहिए. HR is a profession जहाँ पे integrity level अगर आपका 100% नहीं है, then you cannot be a successful HR professional. Right. You have to be clear. Your mind, your heart, and your tongue. There should be no filter into it. If you are going to develop that habit, if whatever is there in your mind, it should remain in your heart and it should be on tongue. You are fair. I mean, there are two concepts. One is 3F formula in IR. What we call is fair, fast, and firm. As a HR professional, if you are fair towards all your decision, it is not binded by any personal bias या और रीजनल bias कि मेरे इलाके का है या मेरे काम का है. If you are fair with your decision, then you can become a very good HR professional. Then you have to be fast. You have to keep on thinking कि एम्प्लॉय में कहाँ शॉप फ्लोर पे क्या चल रहा है, शॉप फ्लोर पे क्या है. आपके डिसीजन फास्ट होने चाहिए, इंफॉर्मेशन फास्ट होनी चाहिए, rather than any nuisance created, right? तो उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन अगर आ गई तो यू कैन ऑब्वियसली उस बात को बड़ा होने से पहले आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. देन यू हैव टू बी फर्म. व्हाट आई सेड इनिशियली इज कि आपको हर डिसीजन डेटा पे लेना है, लेकिन डेटा पे लेने के बाद डिसीजन ले लिया तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस you should never take your decision back. Right. Either don't take it, think about it, take everybody in loop, लेकिन ले लिया तो ले लिया, क्योंकि रिजिड नहीं, because otherwise everybody will think कि आपका decision पीछे हो सकता है. तो give chances, give opportunity to employee or anybody कि उनको सुधारो, काउंसिल करो, उनको समझो, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और बिहेवियर ट्रेनिंग देना करो. But then whatever decision you are taking, after all, then you have to be firm. Otherwise, the reputation of HR manager, कि इनके decisions फ्लक हो सकते हैं, right? आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं HR में. And for the emerging HR profession, what I will take this question like कि अगर learning आपको continuous करनी है, right? No book will teach you the things which you learn as a HR professional. आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, कोई भी सेक्टर उठा लो, when you talk to the HR professional, you always find them very patient, with more wisdom, with knowledge, with greater senses of the people, और उनका जो जिंदगी देखने का नजरिया है वो बदल जाता है, बिकॉज वो एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग से लेके उसकी प्रॉब्लम से लेके सब चीज़ इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है, और उनको सबको केटर करना पड़ता है, उनके एक्सपेक्टेशन को. उनका गुस्सा भी लेना पड़ता है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी लेनी पड़ती हैं, उनके दुख भी लेने पड़ते हैं, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम भी सुननी पड़ती हैं. सो HR की जर्नी कंटिन्यूस लर्निंग की है, एंड यू बिकम मोर साइलेंट, राइट? यू आर मोर पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका पेशेंस अगर आप पे नहीं रहा तो ऑब्वियसली डिसीजंस कैन नॉट बी फ्रूटफुल. राइट. गुस्से में लिए हुए डिसीजंस या बिना पेशेंस के लिए डिसीजंस या फ्रिक्वेंट लिए हुए डिसीजंस हमेशा बैकफायर करते हैं. राइट. तो अगर आप ये लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, अपने करियर को डेवलप करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे. IR की कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं. HR के फंडामेंटल से किताब हो सकती है, बट दैट आर फंडामेंटल कंसेप्ट, दैट इज अ प्रोसेस.
बट एवरी एचआर प्रोफेशनल हैज अ डिफरेंट स्टाइल, Yeah. उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो Correct. वो इतना, वो आपको मेहनत करके हम्म, ही मिलेगा, आपको हम्म, सीखते रहना पड़ेगा। right. अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर उसके बाद यू नो everybody is successful, Right. right? Okay. Even a shopkeeper is successful, everybody is successful. Right. Every profession, it depends on his inner will कि उसे क्या चाहिए। Right. हर एक की एक्सपेक्टेशन, हर एक के गोल्स अलग हैं। हाँ. तो अगर आपको लर्निंग कंटिन्यूस रखेंगे तो हम्म. ऑब्वियसली हो सकता है कि देखो सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई बट स्टिल इज अ विराट कोहली, Yeah. राइट? अब विराट कोहली आज हैं तो विराट कोहली से बेटर भी कोई आएगा। Right. सो द डायनामिक्स चेंजेस। हम्म, आप अगर लर्निंग और हार्डवर्क दोनों को केटर कर रहे हैं तो एचआर प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन। इट नॉट ओनली गिव यू अ प्रोफेशन फीड्स योर अर्निंग बट इट गिव यू अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी विच हेल्प्स यू इन योर लाइफ टू टेक बिगर डिसीजंस। पर्सनल लाइफ में भी आपको इतनी चीज़ों की नॉलेज होती है कि यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। Right. And that's why we get more responsibilities. Yeah. Thank you so much, sir, for all the knowledge you share. Thank you for coming. Same here, and it was a pleasure to be here, and it was a nice interaction. Thank you so much, Akansha. Thank you, sir. Thank you for watching this entire episode till the end. Please check the description for the open job positions and do not forget to share with someone who might be interested to apply for these job openings. And also subscribe Alignment Talks and press the bell icon so you can get the notification of our coming episodes. See you in the next episode. Till the time, stay aligned and keep learning.